Very good morning to all of you. Let us start with the second part of income under the head income from other sources. In my last lecture, we have discussed that which incomes are taxable under the head income from other sources. We have also discussed that there are some of the income, you can see in this pink area, that there are some of the income which are taxable under the head income from other sources, but it is taxable under the head income from other sources only if it is not taxed under the head PGBP or under any other head. So that we have discussed. Now I told you there are certain incomes which are always taxable under the head income from other sources. Okay, so we have to discuss that income in detail. So I have already discussed with you about the dividend. Okay, suppose what we have discussed about the dividend, that if you have received the dividend, okay, if you have received the dividend from the Indian company, suppose if you receive the dividend, okay, but if you receive the dividend from whom? From the Indian company. Okay, so if you receive the dividend from the Indian company, what is the consequences? I told you, as and when the Indian company declares the dividend, company is required to pay the dividend distribution tax under section 1150, okay, at the rate 15%. So dividend distribution tax is required to be paid by the company. देखो सबसे पहले कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी, वो प्रॉफिट पे टैक्स भरेगी, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा, that is profit after tax, from that company will declare the dividend, and as and when company distribute the dividend, company is required to pay what? Dividend distribution tax. Okay, so suppose if you are an individual, and being an individual, if you receive the dividend from the Indian company, okay, इंडियन कंपनी से अगर आपको डिविडेंड मिला है तो कंपनी ने 2 बार टैक्स पे कर दिया. देखो डबल टैक्सेशन हो ही रहा है, बट है प्रोविजन कि भाई प्रॉफिट पे भी कंपनी ने टैक्स पे किया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने टाइम पे टैक्स पे किया. नाउ दैट प्रॉफिट इज कम्स टू यू इन योर हैंड बाय वे ऑफ डिविडेंड. नाउ दिस क्वेश्चन अराइजेस दैट whether it is taxable in the hands of shareholder. So if you receive the dividend from the shareholder, then from the Indian company, then the provision is that it is exempt from tax. It is exempt from tax. Okay, so you are not supposed to pay the tax, but yes, here you remember there is one section 115 BB 115 BBDA. Okay, section 115 BBDA, this is the section. Now what section 115 BBDA says, that if you receive the dividend from the Indian company से अगर आपको प्रीमियम शेयर होल्डर के एंगल से देखते हैं, if you receive the dividend, I told you it is exempt from tax. It is exempt from tax. Okay, but what section 115 says, 115 BBDA, what it says, if you receive the dividend it is exempt, but to what extent? से अगर आपको साल में 10 अलग अलग कंपनियों से 50 अलग अलग कंपनियों से डिविडेंड मिला है, और if the aggregate of that dividend is up to rupees 10 lakh, then up to rupees 10 lakh only is exempt from tax. तो 10 लाख तक मिला है तभी exempt. But suppose 10 लाख से ज़्यादा मिला है, then again it is taxable. Suppose if you receive the dividend from the Indian company of rupees 15 lakh, as per the provision of 10 lakh it is exempt. 10 लाख तक क्या हो जाएगा, वो exempt हो जाएगा, and the remaining amount 5 lakh is taxable. So you can see here the provisions of our Indian company, Indian income tax law. On the same income 3 times tax you are supposed to pay. Suppose कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया तो कंपनी प्रॉफिट पे टैक्स पे करती है, फिर वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया तो उस टाइम पे कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती है, और उसके बाद डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में आता है. तो 10 लाख तक क्या है, एक्सेम्प्ट, लेकिन 10 लाख से ऊपर गया तो अगेन वो 115 BBDA वाला टैक्स लगेगा. तो सी ये 115 BBDA में जो भी इनकम टैक्स करोगे उसका इनकम टैक्स का रेट फिक्स है, that you are supposed to pay tax at rate 10% plus surcharge plus education fees. So you are liable to pay the tax at the rate 10%. But on the
same income 3 times tax is levied by the government. Profit पे dividend distribution tax और 115 BBDA वाला tax करता है. So this is the provision in respect of the dividend if you receive from the Indian company. Now suppose if you have received the dividend from the foreign company. Okay, suppose आपको foreign company से dividend मिलता है. Suppose if you receive the dividend from the foreign company. What is the provision? It is very much clear provision that see it is always taxable in your hand. Okay, no exemption, no deduction. Okay, whatever dividend you received from the Indian company, it is from the foreign company, it is always taxable. So foreign company से जो भी dividend रहता है वो पूरा taxable हो जाएगा. यहाँ से कोई exemption deduction नहीं मिलता. Okay, Indian company के केस में 10 लाख तक tax मिलता. ठीक है. Now see what other provisions is. तो हमने ये Indian company देखा, foreign company देखा. Suppose if you receive the dividend from the mutual fund, MF मतलब mutual fund, यहाँ लिखा है MF. Or if you receive the dividend from the UTI, that is Unit Trust of India. Suppose if you receive the dividend from the mutual fund company, okay, suppose आपने पैसे कंपनी में नहीं इन्वेस्ट किया लेकिन आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया. म्यूचुअल फंड में भी अगर पैसे इन्वेस्ट किया तो आपको रिटर्न कौन से फॉर्म में मिलेगा? इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड. और सपोज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज आल्सो काइंड ऑफ अ म्यूचुअल फंड बट इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. बाकी सब जो म्यूचुअल फंड है वो प्राइवेट होते हैं. अगर आप म्यूचुअल फंड से अगर आपको डिविडेंड मिलता है then what is the provision? It is always exempt from tax. Okay, so if you receive the dividend from the mutual fund company or UTI, it is exempt from tax. ये सब याद रखना बेटा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है. ठीक है. Now another point, suppose if you receive the deemed dividend under, so what is the provision? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि deemed dividend किसको कहते हैं. What is the deemed dividend? तो देखो, suppose if you receive the deemed dividend, okay, ये डिविडेंड एग्जैक्टली डिविडेंड नहीं है लेकिन ये इसको हम डिविडेंड मान लेते हैं. जनरली क्या है कि when the company distribute the profit among its shareholders, generally when the company distributes the profit among its shareholders, it amounts to what it is told as or it is called as dividend. उसको हम डिविडेंड कहते हैं. लेकिन ये एग्जैक्टली डिविडेंड नहीं है लेकिन इसको इनकम टैक्स में डिविडेंड माना जाता है. और इनकम टैक्स ऐसा कहते हैं कोई भी तरीके से अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को पैसा देती है कोई भी तरीके से, प्रॉफिट के फॉर्म में या लोन के फॉर्म में, या तो फिर कंपनी अपनी असेट को बेच के जब लिक्विडेशन के टाइम में जो देती है उसको हम क्या कहेंगे? वी कैन कॉल इट एज अ डिविडेंड. सपोज इफ यू रिसीव दिस काइंड ऑफ डिविडेंड दैट इज कॉल्ड द डीम्ड डिविडेंड. द प्रॉफिट से देखो हमने पॉइंट आपने समझे कौन है डीम्ड डिविडेंड. हियर इट इज फाइनेंशियल, ये सब डीम्ड डिविडेंड. The distribution of accumulated profit, okay, to the shareholder which release the company's asset. मतलब क्या होता है कि not bonus issue of equity share is not distribution of asset. bonus share को हम डिविडेंड नहीं गिनेंगे. कंपनी अपनी asset बेच के अपने शेयर होल्डर से को डिस्ट्रीब्यूट करती है पैसा. ठीक है. लिक्विडेशन के टाइम पे ऐसा होता है कि कंपनी बंद हो रही है और असेट बेच देगी तो उससे जो पैसा आएगा उससे अपना डेट पे कर देगी और बाकी जो बचा वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करेगी. ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो दैट इज ट्रीटेड एज व्हाट डीम्ड डिविडेंड. ठीक है. लाइक सी एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय द कंपनी लाइक बोनस शेयर, बोनस डिबेंचर और डिबेंचर शेयर्स नहीं, देखो बोनस शेयर, ओके, और डीम्ड डिबेंचर to any shareholder it is treated as also a deemed dividend. तो अपने डिबेंचर होल्डर को, सॉरी अपने शेयर होल्डर को, देखो ये पैसा कंपनी किसको डिस्ट्रीब्यूट करती है? शेयर होल्डर. अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिबेंचर इश्यू करती है वो भी फ्री में. बोनस का मतलब क्या है? फ्री में. ओके, तो बोनस डिबेंचर या तो फिर बोनस शेयर किसको इश्यू करती है? टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर. इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर इश्यू करते हैं तो इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ डीम्ड डिविडेंड. Okay, but if the company issues the bonus debenture to the equity shareholder or any other kind of shareholder or a bonus share to the preference shareholder, okay, then it is treated as a deemed dividend. लेकिन आप देख सकते हो if the bonus shares are issued to whom? To the equity shareholder, it is not treated as a deemed dividend. तब उसको हम deemed dividend नहीं कहेंगे. ठीक है. तो see, if the company issues the bonus debenture or debenture stock to any shareholder, or if the company issues the bonus share
to whom, to the preference shareholder, it is treated as the deemed dividend. Okay, सेम है, तो कंपनी अपनी एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है, कंपनी अपना जो प्रॉफिट है उसमें से कंपनी डिबेंचर कोई भी टाइप के शेयर होल्डर को बोनस में देती है, बोनस मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में देती है, ठीक है। और बोनस शेयर अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया, इट इज द डीम्ड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड सम ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। देखो, अगर कंपनी थोड़ी बहुत एसेट बेच के शेयर होल्डर को पैसा देती है, दैट इज आल्सो डीम्ड डिविडेंड। अगर कंपनी बंद हो जा रही है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को दे रही है, ओके, उसमें से, तो दैट इज आल्सो ट्रीटेड एज अ डीम्ड डिविडेंड। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल। अगर कंपनी बायबैक करती है और कंपनी अपने शेयर को क्या करती है, कैपिटल रिडक्शन करती है, और कैपिटल रिडक्शन के टाइम पे अगर कंपनी अपना शेयर होल्डर को उसका पैसा वापस देती है, कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर देती है, अपने एक्यूमुलेटेड असेट को बेच के जो पैसा है उसका पैसा देती है, तो इट इज ट्रीटेड एज अ डीम्ड डिविडेंड। सेम वे अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को, देखो, इफ द प्रॉफिट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बाय द क्लोजली हेल्ड कंपनी बाय वे ऑफ एडवांस और लोन, कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन भी देती है। कैसे शेयर होल्डर को, जिसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट कंपनी में 10% से ज्यादा है, और टू एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर, और टू एनी कंसर्न इन विच सच शेयर होल्डर हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, और टू कंसर्न इन विच द शेयर होल्डर इज अ मेंबर और पार्टनर। मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर को और शेयर होल्डर की जो रिलेटिव एंटिटीज हैं उसको लोन देती है। कैसे शेयर होल्डर, क्लोजली हेल्ड कंपनीज है, क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब जिसमें पब्लिक का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, कुछ शेयर होल्डर ही होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझ लो, तो ऐसी कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन देती है। ओके, या शेयर होल्डर को नहीं दिया तो शेयर होल्डर के कोई रिलेटिव को लोन देती है, और एनी कंसर्न इन विच द शेयर होल्डर इज हैविंग द सब्सटेंशियल इंटरेस्ट उसको लोन देती है। सपोज पार्टनरशिप में उसमें 51% पार्टनर्स का ही शेयर, मिस्टर ए का शेयर होल्डिंग सपोज 51% है, उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मिस्टर ए का है, और कंपनी वो लोन किसको देती है, पार्टनर को ना देते, सॉरी, शेयर होल्डर को ना देते हुए पार्टनरशिप फर्म को देती है जिसमें शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो ऐसी कोई भी एंटिटी को, ऐसे कोई शेयर होल्डर को अगर लोन दिया जाता है बाय द क्लोजली हेल्ड कंपनी to the shareholder who is having a substantial interest in the company or beneficiary holding 10% or more equity shares, तो ऐसे लोगों को अगर, मतलब कंपनी कैन नॉट गिव, देखो कंपनी एक्ट तो ऐसा बोलता है, कंपनी कैन नॉट गिव द लोन टू इट्स शेयर होल्डर, कंपनी एक्ट ऐसा बोलता है। और ये इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन देती है तो उसको हम डीम्ड डिविडेंड कहेंगे, ठीक है। और सी फॉलोइंग पेमेंट आर नॉट ट्रीटेड एज अ डीम्ड डिविडेंड, मतलब ए बी सी डी ई, ए से ई, अगर कंपनी अपना प्रॉफिट, अपने एक्यूमुलेटेड असेट डिस्ट्रीब्यूट करती है, ओके, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है, देन विच रिलीज द कंपनीज असेट, देन कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिबेंचर बोनस भी देती है, या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर इश्यू करती है, या तो फिर लिक्विडेशन के टाइम पे कंपनी अपने शेयर होल्डर को पैसा वापस देती है, या तो फिर कंपनी रिडक्शन करती है कैपिटल का और उसके टाइम पे कंपनी शेयर होल्डर को उसका पैसा वापस देती है, ओके। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अपने पास है, कंपनी उसमें से कोई लोन दे रही है अपने शेयर होल्डर को, कैसा शेयर होल्डर जिसका 10% से ज्यादा इंटरेस्ट है, ऐसे लोगों को लोन दिया तो इट इज ट्रीटेड एज अ डीम्ड डिविडेंड। देखो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किसको कहते हैं, ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आई एम नॉट रीडिंग, बट यू जस्ट गो थ्रू वंस, ओके, बट वी हैव टू रिमेंबर दिस ओनली, ओके। नाउ सी सपोज कंपनी हैज पेड द डीम्ड डिविडेंड, ये चारों, ये देखो, अगर ये देखो इसको डीम्ड डिविडेंड नहीं कहा जाता, फॉलोइंग पेमेंट्स आर शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड डिविडेंड, ट्रेड एडवांस आर नॉट ट्रीटेड एज अ डीम्ड डिविडेंड, बायबैक करते हैं शेयर उसको भी हम डीम्ड डिविडेंड नहीं कहते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर, डीमर्जर के टाइम पे अगर शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको भी हम डीम्ड डिविडेंड नहीं कहेंगे। तो डीम्ड डिविडेंड ये ए टू ई वाले पॉइंट है, उसको हम डीम्ड डिविडेंड कहते हैं। और अगर कंपनी ने, मतलब कंपनी अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है उसको तो हम डिविडेंड कहते ही है, लेकिन ये दूसरे तरीके से भी अपने शेयर होल्डर को कंपनी पैसा देती है तो हम उसको क्या कहेंगे, डीम्ड डिविडेंड। Or suppose the company has paid the deemed dividend, what is the tax treatment? Let us discuss the tax treatment. Okay, the deemed dividend under section A to ED, now it is E also. Okay, अभी तो क्या है कि 1/4/2018 के बाद E के लिए भी सेम प्रोविजन है, देखो यहाँ आप देख सकते हो। तो अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को डीम्ड डिविडेंड दे रही है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी हैज टू पे द DDT, मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी को 15% के रेट से पे करना पड़ेगा।
कौन से वाले केस में, A2D केस में। तो कंपनी ने टैक्स पे कर दिया, तो शेयर होल्डर के लिए क्या होगा, इट इज एग्जम्प्ट। शेयर होल्डर के लिए दैट अमाउंट इज एग्जम्प्ट। बट देखो आपको पता है कि डिविडेंड अगर शेयर होल्डर्स ने रिसीव किया तो कहाँ तक एग्जम्प्ट है, अप टू ₹10 लाख 115 BBDA 115 BBDA तो एप्लीकेबल होगा ही होगा। अगर डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E मतलब कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को लोन दिया है, तो वो केस में पहले क्या था कि पहले वो शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल हो जाता था। अभी वो प्रोविजन निकल गया आफ्टर 1/4/2008, शेयर होल्डर के लिए वो भी एग्जम्प्ट होगा और कंपनी को यहाँ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ेगा। कितना परसेंटेज, 30%। देखो नॉर्मली अगर कंपनी डिविडेंड पे डिस्ट्रीब्यूट करती है तो कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कितना परसेंटेज पे करना पड़ता है, 15%। 115 में 15%। लेकिन 222E वाला डिविडेंड पे करती है। 222E मतलब वो कंपनी इज गिविंग द लोन टू इट्स शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर को लोन दिया तो उसको डिविडेंड मान लिया जाएगा, कंपनी को DDT पे करना पड़ेगा कितना, 30%। नाउ इफ द शेयर होल्डर रिसीव्स इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर इट इज एग्जम्प्ट सब्जेक्ट टू 115 BBDA। 10 लाख तक ही है, 10 लाख से ज़्यादा दिया तो अगेन इट विल बी टैक्सेबल। ओके, तो सी दिस इज द प्रोविजन इन रिलेशन टू डिविडेंड। आई हैव नॉट डिस्कस दिस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यू नो इट कि कंपनी અત્યાર સુધી ભેગા થયેલા પ્રોફિટને આપણે एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहीશું। वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल फॉर दिस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वाला जो पॉइंट है उसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। बट सी हियर यू मस्ट नो दैट अगर कंपनी ने डिविडेंड दिया A2D वाले पॉइंट में कंपनी को 15% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ेगा, तो शेयर होल्डर के हाथ में वो एग्जम्प्ट होगा। लेकिन अगर कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 222E वाला पॉइंट ये है, ये वाला डिविडेंड दिया तो कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कितने परसेंटेज से पे करना पड़ेगा, 30% के से, और शेयर होल्डर के लिए वो डिविडेंड क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट। ठीक है, सो दिस आर द पॉइंट्स इन रिलेशन टू द डिविडेंड। सो व्हाट वी हैव डिस्कस, अगर फॉरेन कंपनी से, देखो इंडियन कंपनी से रिसीव किया अप टू 10 लाख एग्जाम, 10 लाख से ऊपर टैक्सेबल। फॉरेन कंपनी से लिया टैक्सेबल, म्यूचुअल फंड से मिला एग्जाम। डीम डिविडेंड अगर रिसीव करते हैं तो सभी केस में हमने देखा A2D वाले जो पॉइंट है, A2D में कंपनी क्या करती है, A2D मतलब समझे, ये पॉइंट नंबर ए से लेके D वाला डिविडेंड अगर दिया है तो वो डिविडेंड क्या होगा, कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ेगा एट द रेट 30%, और शेयर होल्डर के लिए वो पैसा क्या हो जाएगा, एग्जाम। लेकिन 115 BBDA यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। अगर E वाला डिविडेंड दिया है तो कंपनी को, सॉरी यहाँ कंपनी को 15% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर E वाला डिविडेंड है तो कंपनी हैज टू पे द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एट द रेट 30%, और सी अगेन दैट मनी व्हाटएवर इज रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर इट विल बी एग्जम्प्ट इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, so these are the provisions in relation to the dividend. So we have discussed with you all the points in relation to dividend except this accumulated profit. We will not go in detail. Here I have mentioned also that you have to read once. Okay. Now see the next income. So we are discussing the various income which are taxable under the head income from other sources. So another income which is always taxable under the head income from other sources is a casual income. Casual means what? The income which is not arising to you in day-to-day business, day-to-day life। कभी कभी नसीब अच्छा है तो लग जाता है, ऐसी इनकम को हम कैजुअल इनकम कहते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, ओके, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, ये सब जगह से अगर आपको इनकम मिल रही है तो दैट इनकम वी कॉल्ड इट एज व्हाट, वी कॉल्ड इट एज ए कैजुअल इनकम। ओके, सो कैजुअल इनकम, इफ यू हैव रिसीव्ड द कैजुअल इनकम, तो अगर कैजुअल इनकम आप अर्न कर रहे हो, हम कैसो सर હું તો રોજ જુગાર જ રમું છું, લોટરી જ રમું છું, so it is my business, it should be taxable under the head PGBP. No, if you earn the casual income it is always taxable under which head, it is always taxable under the head income from other sources. Okay, देखो यहाँ टैक्स रेट फिक्स है कि अगर आपको कैजुअल इनकम मिली तो कैजुअल इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल एट द रेट 30% प्लस सरचार्ज। अगर सरचार्ज 1 करोड़ से ऊपर होता है अमाउंट तो सरचार्ज भी लगता है उसमें। ठीक है, और उसके ऊपर मतलब कैजुअल इनकम है उसमें कितना टैक्स लगेगा, 30% और उसमें सरचार्ज लगेगा, और जो उसके बाद ये दोनों का टोटल करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगी। अंडर सेक्शन 115BB दिस इनकम इज टैक्सेबल एट द फ्लैट रेट ऑफ 30%। जो नॉर्मल स्लैब रेट होते हैं उसको एप्लीकेबल नहीं होते। जैसे आपको मैंने यहाँ पे भी बताया
कि अगर आपको 115 BBDA वाला जो डिविडेंड मिलता है 10 लाख के ऊपर, तो उस पर टैक्स रेट फिक्स है, ठीक है। सेम भी यहाँ पे भी अगर आपको कैजुअल इनकम मिलती है तो कैजुअल इनकम फ्लैट टैक्स रेट पे टैक्सेबल होती है, दैट इज एट द रेट 30%। उसको आपके इनकम टैक्स के स्लैब में जब भी इनकम पे टैक्स कैलकुलेट कर दो, ये इनकम है उस पर सीधा 30% टैक्स भर दो। ओके, नाउ सी यू शुड रिमेंबर, मैंने आपको बताया कि कोई भी इनकम को अर्न करने के लिए आप खर्चा करते हो तो उसका डिडक्शन मिलता है, लेकिन एक कैजुअल इनकम को अर्न करने के लिए अगर आपने खर्चा किया कि भाई सपोज लॉटरी लगी तो लॉटरी टैक्सेबल, लेकिन लॉटरी को खरीदने का आपका जो खर्चा हुआ है दैट इज नॉट अलाउड एज ए डिडक्शन, ठीक है। તમે કહેશો આજે મને 1 કરોડ રૂપિયા હું જુગારમાં જીત્યો પણ ગઈકાલે તો 10 લાખ રૂપિયા હારી ગયો, તો 10 લાખનું ડિડક્શન મળવું જોઈએ ને? આન્સર ઇઝ નો. In case of casual income, you will never get any deduction, even if the expenses for buying the lottery ticket are not allowed. Okay. You even देखो, आपको पता है कि आप पांचों हेड की इनकम कैलकुलेट करते हो, उसके बाद आपको ग्रॉस टोटल इनकम मिलती है, और ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC to 80U मिलता है। बट सी वो चैप्टर 6 के जो डिडक्शन है, मतलब 80C to 80U वाला, तो ये जो डिडक्शन है वो भी आपको कैजुअल इनकम में से नहीं मिलती है। कैजुअल इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल, उसमें से कोई भी टाइप का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, देन सी एडजस्टमेंट ऑफ अनएग्जॉस्टेड ब्रॉड फॉरवर्डेड लॉसेस। ओके, BEL मतलब एडजस्टमेंट ऑफ अनएग्जॉस्टेड is not allowed. Adjustment of unexhausted losses is also not allowed. Okay, तो अगर आप जो लॉसेस जो होते हैं, जो कैरी फॉरवर्डेड लॉसेस, उसका भी एडजस्टमेंट आप करना चाहते हो, यू कैन नॉट डू अगेंस्ट दिस कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम जो होती है वो हमेशा टैक्सेबल होती है। और देखो उसमें क्या होता है, आपको जो पैसा मिलता है ना वो TDS काट के ही मिलेगा। सपोज आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगी तो उसमें 30% TDS काट के आपके हाथ में 70 लाख ही आएगा। तो आपको टैक्स जब कैलकुलेट करते हो तो उसको 70 टैक्स नहीं कंसीडर करना। आपने लॉटरी कितने की जीती है? 1 करोड़ की, मतलब ग्रॉस अमाउंट इज टैक्सेबल। यहाँ ग्रॉसिंग अप का फॉर्मूला भी दिया है। सपोज आपको जितना भी अमाउंट मिला है उसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा, मतलब जब भी आपको पैसा मिलता है तो वो TDS डिडक्ट करके मिलता है। तो इफ द TDS इज डिडक्टेड, आपको TDS के बाद का अमाउंट नहीं लेना, TDS के पहले का अमाउंट लेना है और उस पर टैक्स पे करना है। फॉर एग्जाम्पल सी, सपोज आई हैव वीन द लॉटरी ऑफ रुपीज, सपोज आई हैव वीन द लॉटरी ऑफ रुपीज 1 करोड़। ओके, 1 करोड़ का मुझे लॉटरी लगा, ठीक है। तो वो लॉटरी वाला जो है मुझे वो पूरा 1 लाख नहीं देगा, उसमें से वो क्या करेगा, ही विल डिडक्ट दी 30 लाख रुपीज टैक्स TDS एट द रेट 30% के रेट से उसने क्या काट लिया, TDS। तो मुझे कितना मिला, सी आई हैव रिसीव्ड 70 लाख रुपीज। सो सी व्हाट इज माय टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द कैजुअल इनकम? फ्रॉम द कैजुअल इनकम आई एम अर्निंग 1 करोड़ रुपीज। सो एज एंड व्हेन आई कैलकुलेट माय इनकम टैक्स, सी आई नीड टू कैलकुलेट द टैक्स ऑफ 1 करोड़ एंड नॉट ऑन द 70। नो डाउट दैट whatever TDS you are paying, that will get adjusted against your tax liability। जो नेक्स्ट ईयर में आपको टैक्स लायबिलिटी पे करनी है उसमें से TDS आपका जितना जमा हो गया है वो टैक्स लायबिलिटी के सामने एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप टैक्स कैलकुलेशन के लिए इनकम कंसीडर करते हो, दैट इज व्हाट इज माय इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर फ्रॉम द कैजुअल इनकम, सो यू हैव सपोज टू कंसीडर 1 करोड़। तो जब भी आपको ये अमाउंट, देखो ये अमाउंट को कहते हैं ग्रॉस अमाउंट, ओके, और ये अमाउंट को बोलते हैं नेट अमाउंट। तो अगर आपको नेट अमाउंट दिया है तो हाउ टू ग्रॉस अप, यू नो दी वेरी वेल दैट हाउ टू ग्रॉस अप। ये ग्रॉस कैसे करते हैं? नेट अमाउंट दिया है तो सी क्या करना है, नेट अमाउंट, ओके, उसको डिवाइड करना है 1 माइनस 0.30, ओके, मतलब 0.7 होता है। क्योंकि देखो तो यहाँ मुझे नेट अमाउंट कितना मिला, 70 लाख रुपया मिला। तो 70 लाख रुपया सपोज है, उसको 1 माइनस 0.30 मतलब 30 कहाँ से आया, 30%, मतलब 30% का मतलब क्या होता है, 30 डिवाइडेड बाय 100 मतलब क्या हुआ 0.30। 1 माइनस 30 करते हैं कितना आएगा 0.70। तो 170 लाख माइनस डिवाइडेड बाय 0.70 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1 करोड़। मतलब सी अगर आपको नेट अमाउंट दिया है तो नेट अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 माइनस
0.30 मतलब 0.70 करना है हमेशा आपको। ऐसा करोगे नील अमाउंट को ये 0.70 से डिवाइड करोगे, यू विल ऑलवेज गेट व्हाट, यू विल ऑलवेज गेट द ग्रॉस अमाउंट। ओके, और सी ग्रॉस अमाउंट पे ही मतलब व्हाट इज योर टैक्सेबल इनकम ईयर फॉर द प्रीवियस इन 1920, सपोज आपको गॉट 1 करोड़ एंड नॉट 70। जब भी आप टैक्स कैलकुलेट करते हो, ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करते हो, ये अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना है, नॉट ऑन दिस अमाउंट। मतलब फिर क्या होगा, आपने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया तो वो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको ग्रॉस अमाउंट देना है, आपको नेट अमाउंट कंसीडर नहीं करना है। तो दैट इज कॉल्ड द ग्रॉसिंग अप। ओके, तो सी रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स मतलब व्हाट, 30% यहाँ उड़ाई है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.30 करना है आपको, ठीक है। नाउ सी इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज, दिस इज अनदर इनकम, कैजुअल इनकम वी हैव सीन। तो ये देखो, ये यहाँ भी नोट लिखा है, पहले ये देख रहे थे कि इफ द नेट अमाउंट इज गिवन देन इट इज इक्वल टू ग्रॉस ऑफ एंड टैक्स विल बी लिमिटेड ऑन द ग्रॉस इनकम। आप बोलोगे सर 30% टैक्स तो कापरी जावे, पाછું ઉપર ગ્રોસ કરીને ટેક્સ ભરવાનો, હા એના પર ગ્રોસ પર પે કરવાનો, તમારો ટીડીએસ પેલા કાપીને જમા કરી દીધો છે, પછી આ ટેક્સ તમારો એની સામે એડજસ્ટ થશે। बट सी एज एन व्हेन यू कैलकुलेट योर इनकम टैक्स में कभी भी नेट अमाउंट दिया तो उसकी जगह ग्रॉस करके आपको प्रीवियस ईयर का इनकम कैलकुलेट करना है। अगेन व्हाट एवर टैक्स यू हैव कैलकुलेटेड दैट विल गेट एडजस्टेड अगेंस्ट द टीडीएस ऑलरेडी पेड बाय दैट पर्सन। आपके खाते में से डिडक्ट करके उसने, मतलब आपके अमाउंट में से डिडक्ट करके आपके अकाउंट में उसने डिपॉजिट कर दिया टीडीएस में, तो वो एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो सी gross amount if it is given, sorry, net amount is given, you are supposed to gross up. Now see, let us discuss the another income. कि suppose if you have invested the money, suppose आपका main business investment का नहीं, अगर investment का ही main business है and if you receive the interest, that is your business income taxable, okay, under the head PGBP. But suppose if you are having extra money you have invested in the securities, okay, then आपने जो इन्वेस्टमेंट रखे हैं, वो इन्वेस्टमेंट पे अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लेकिन आपने जो सिक्योरिटीज को आपने कैसे हेल्ड किया है, एज ए इन्वेस्टमेंट। सपोज सिक्योरिटीज आर हेल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट and if you earn the income then that income is always taxable under which head, under the income from other sources, that you can see here. But suppose if you have received the, if you held the security as a stock in trade, SIT मतलब stock in trade, then the income will be taxable under which head, under the head PGBP. Then the income is taxable under the head profit and gains of business and profession. तो ये पीजीबीपी वाले हेड में वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। देन द इनकम इज टैक्सेबल अंडर विच हेड, अंडर द हेड पीजीबीपी। देन द इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। ओके, तो यू शुड रिमेंबर, ये तो सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में रखा है तो इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड IFOS, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इफ द securities are held as a stock in trade, then the income, whatever interest income is arise, that interest income is taxable under the head PGBP. But you should remember कि अगर आपने ये सब सिक्योरिटीज से इंटरेस्ट रिसीव किया अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 15 क्या कहता है, इफ यू हैव रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में आपका पैसा पड़ा और उस पर इंटरेस्ट आपको मिलता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है। देन सी उसमें से जितना भी इंटरेस्ट मिला है उसमें से 3500 रुपया 30,500 इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स इफ you have held that money or you have invested that money in your individual capacity, मतलब अकाउंट सिंगल अकाउंट है, आपके नाम से आपने अकाउंट खोल रखा है, तो जितना भी इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट से आता है उसमें से 3,500 एग्जाम होगा। और सपोज आपका जॉइंट अकाउंट है, सपोज आपका और आपकी वाइफ का जॉइंट अकाउंट है, और इफ यू रिसीव द इंटरेस्ट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट then up to ₹7,000 that interest is exempt. Interest on securities is taxable, but if you have received the interest from the post office saving bank account, then up to ₹3,500 it is exempt if you have held that money or if you have invested that money in your individual capacity. Now suppose there is a joint account, then up to ₹7,000 it is exempt. Same way, suppose if you have invested the money in these bonds, देखिए गवर्नमेंट की अलग अलग कंपनियों के नाम है, okay, like IRFCL, National
हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बोर्ड, ओके, और ये दूसरी ये सब कंपनीज है गवर्नमेंट की, उसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उसके बॉन्ड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और इफ यू रिसीव द इंटरेस्ट, देन इंटरेस्ट ऑन सच सिक्योरिटीज इज ऑलवेज एग्जाम फ्रॉम टैक्स। सेम वे आपने गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंतर्गत 2015 में जो गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है, उस स्कीम के अंतर्गत अगर आपने गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम। सेम वे इंटरेस्ट फ्रॉम द टैक्स फ्री बॉन्ड, पूल्ड फाइनेंस डेवलपमेंट बॉन्ड, तो ये गवर्नमेंट ने इश्यू किए हुए बॉन्ड है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट एग्जाम है। यहाँ से आपको ये 7035 वाला पॉइंट याद रखना है। और ये अदर बॉन्ड्स इफ यू हैव इन्वेस्टेड एंड ऑन दैट इफ यू हैव रिसीव्ड इंटरेस्ट, okay, then that is also exempt from tax. Okay, now see, let us discuss the another point. Okay, so this is the point that you are supposed to remember. Now the next point of discussion is taxation of the gift. Okay, so see, if you are receiving the gift, okay, received without consideration or with the inadequate consideration, okay, suppose if you receive the money or the property, okay, for inadequate consideration or for a without consideration by any person, okay, then that is exempt from, that is taxable. Okay, so that is taxable. देखो अभी ये प्रोविजन एनी पर्सन तक आ गया कि कोई भी बंदे को अगर रिसीव ऑफ मनी और प्रॉपर्टी कम कंसिडरेशन में मिलती है और विदाउट कंसिडरेशन में मिलती है, मतलब अल्टीमेटली इट इज अ काइंड ऑफ गिफ्ट। नाउ इफ यू रिसीव द सेम, then that is exempt, that is taxable, okay। तो see, before we discuss this ये जो आपका ग्रीन कलर में है वो गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी है। before we discuss, okay, तो see, before we discuss that, देखो पहले हम ये समझते हैं कि गिफ्ट कब टैक्सेबल नहीं होती है, फिर हम टैक्सेबिलिटी हम देखते हैं। तो ये हमने ग्रीन वाला पॉइंट पढ़ा। देखो क्या बोलते हैं, पहले तो गिफ्ट किसको कहते हैं वो आप समझो, फिर हम देखते हैं कब वो टैक्सेबल नहीं हो, ठीक है। सो सपोज इफ यू रिसीव व्हाट, सपोज एनी पर्सन, यहाँ क्या लिखा, एनी पर्सन मतलब कोई भी बंदा, इफ यू रिसीव्स मनी, उसको मनी मिलता है किसी से, या तो फिर और he is receiving a property, suppose he receives the money or property, money और property इसको मिलता है कैसे, या तो inadequate consideration में, inadequate consideration में, या तो फिर विदाउट कंसिडरेशन, मतलब તમે થોડા પૈસા ચૂકવીને વધારે મેળવો છો, બાકી કંઈ પણ નથી ચૂકવતા ને તમને કંઈક મળે। इनएडिक्वेट मतलब समझ लो कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख की है, कोई आपको 10 लाख में देगा, तो ये 40 लाख रुपए जो डिफरेंस है वो क्या, वो अल्टीमेटली गिफ्टिंग हुआ। सपोज 50 लाख की प्रॉपर्टी में आपको मुफ्त में दे रहा है, तो पूरा 50 लाख आपके लिए क्या हुआ, गिफ्ट। मतलब इफ यू रिसीव एनीथिंग फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, 50 लाख की वस्तु 10 लाख का रुपए में, तो दैट इज इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, डिफरेंस जो 40 लाख है वो आपके लिए क्या है, गिफ्ट है। और सपोज इफ यू रिसीव समथिंग विदाउट कंसीडरेशन, 50 लाख की वस्तु मुफ्त में मिलेगी, तो दैट इज आल्सो। सपोज इफ यू रिसीव दिस गिफ्ट, देन दिस गिफ्ट इज टैक्सेबल, देन द गिफ्ट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56, मतलब अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में गिफ्ट टैक्सेबल। लेकिन इफ यू रिसीव द गिफ्ट and from the certain persons or certain situation, then it is exempt। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कब गिफ्ट टैक्सेबल नहीं हो, ओके। तो सी फॉलोइंग गिफ्ट्स आर नॉट टैक्सेबल इररिस्पेक्टिव व्हाइल कैलकुलेटिंग अबाउट लिमिट 50,000। मतलब देखो ये गिफ्ट में भी ऐसा प्रोविजन है कि अगर ये गिफ्ट जो आपको मिलती है, अगर 50,000 से कम की गिफ्ट मिलती है, इफ यू रिसीव द गिफ्ट, ओके, अगर गिफ्ट का अमाउंट आपका कैसा है, इफ यू आर रिसीविंग द अमाउंट, the amount of gift is less than rupees 50,000, then it is not treated as income, उसको इनकम ही नहीं गिना जाता, और अगर इनकम नहीं है तो क्या होगा, it is not taxable, okay। लेकिन अगर गिफ्ट का अमाउंट क्या होगा, if the amount of gift is more than, अगर गिफ्ट का अमाउंट कैसा है, is more than rupees 50,000, then the gift will be taxable। लेकिन ये जो केसेस है, यहाँ आपका गिफ्ट का अमाउंट 50,000 से ज़्यादा भी हो जाता है, गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा। When the gift is not taxable, so following gifts are not taxable irrespective of terms, if the amount of gift is more than 50,000, 50,000 से ज़्यादा भी होगा, लेकिन ये जो पिंक वाले में दिया है
तो ये सब गिफ्ट अगर आपको मिली है देन इट इज ऑलवेज एग्जाम फ्रॉम टैक्स। तो गिफ्ट कब एग्जाम होती है, भले 50,000 से मिला। तो इफ यू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम अ रिलेटिव इट इज एग्जाम। अगर आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिला है वो हमेशा एग्जाम हो जाएगा। ओके, सपोज इफ यू रिसीव द गिफ्ट ऑन ओकेजन ऑफ योर मैरिज, आपको आपके खुद के मैरिज के ओकेजन पे गिफ्ट मिलती है, एग्जाम हो जाएगी। अगर गिफ्ट आपको गिफ्ट इज रिसीव्ड ऑन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ द डेथ ऑफ पेई और डोनर, मतलब कोई जो पेई मतलब जो देने वाला है उसकी डेथ हो जाती है और वो डेथ के टाइम पे उसने विल में लिख दिया कि वो बना के गया है कि भाई मेरे मरने के बाद मेरी ये सभी प्रॉपर्टी इसको मिलेगी। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, गिफ्ट ऑन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ पेयर और डोनर। तो किसी के डेथ की बाद आपको कोई पैसा मिल रहा है, ओके, आप उसके कोई सगे नहीं लगते हो, लेकिन उसने आपको बोल दिया है कि भाई मेरे मरने के बाद इसके मेरे पैसे इसके, और ऐसे आपको गिफ्ट मिलती है, दैट इज एग्जाम। सेम वे अगर कुछ चीज ऐसी हो जो विल से मिलती है, विल मतलब सपोज फादर की डेथ होती है तो बेटे को पैसा उसका जो होता है वो मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड विल और इनहेरिटेंस। तो विल और इनहेरिटेंस देखो आप, ये दोनों पॉइंट सेम है। अगर आपको आपके फादर से मिलता है तो दैट इज कॉल्ड विल और इनहेरिटेंस। फादर के अलावा दूसरा कोई बंदा अपनी विल बना के गया कि मेरे मरने के बाद ये पैसा इसका, ओके, तो दैट इज कॉल्ड गिफ्ट ऑन कंटेम्पलेशन ऑफ द डेथ ऑफ पेयर। और इफ यू रिसीव ऑन द डेथ ऑफ योर फादर then that gift is exempt. So suppose if you receive the gift from your relative, if you receive the gift on occasion of your marriage, if you receive the gift on contemplation of the death of payer or donor, or if you receive the gift by way of will or inheritance, और अगर आपको कोई लोकल अथॉरिटी से गिफ्ट मिलती है, सपोज इफ यू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी, ओके, लाइक वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज गिविंग अ प्लॉट ऑफ लैंड टू यू बाय वे ऑफ गिफ्ट, देन दैट इज इट इज एग्जाम। ओके, सपोज इफ यू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम एनी चैरिटेबल ट्रस्ट से कोई गिफ्ट मिल रहा है, देन दैट इज आल्सो एग्जाम। और सेम वे गिफ्ट रिसीव्ड बाय द ट्रस्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल, मतलब कि कोई ट्रस्ट इंडिविजुअल ने अपना प्राइवेट ट्रस्ट क्रिएट किया है। ट्रस्ट दो टाइप के होते हैं, एक चैरिटेबल जो जनरल पब्लिक ट्रस्ट में से बेनिफिट ले सकती है, और प्राइवेट ट्रस्ट ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन ही बेनिफिट ले सकता है। तो इफ द गिफ्ट इज रिसीव्ड बाय अ ट्रस्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल, लेकिन ये उल्टा है, इंडिविजुअल ट्रस्ट को गिफ्ट देता है, ओके, गिफ्ट रिसीव्ड बाय ट्रस्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल। तो सी, अगर ट्रस्ट को गिफ्ट दिया जाता है, और देखो ट्रस्ट मस्ट बी क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के रिलेटिव के बेनिफिट के लिए अगर आपने ट्रस्ट क्रिएट किया, देन दैट ट्रस्ट इज एग्जाम। जस्ट अ मिनट, आई हैव टू होल्ड। हाँ रेजवे, हेलो हेलो, हाँ कौन हो, कौन हो, विरल, हाँ बोले लो, वादो नहीं, काम तो छे उनके लिए, वादो नहीं, ले जाओ ले जाओ, हाँ हाँ, okay. Suppose if the private trust is created by individual, और इंडिविजुअल ने एक ट्रस्ट क्रिएट किया, और वो ट्रस्ट किसे बनाया, क्योंकि अपने रिलेटिव के बेनिफिट के लिए, और वो क्या करते हैं, इंडिविजुअल पर्सन इज गिविंग द गिफ्ट टू द ट्रस्ट, देन इन द हैंड्स ऑफ ट्रस्ट दैट गिफ्ट इज एग्जाम। तो देखो ये सभी गिफ्ट होती है वो एग्जाम होती है। लास्ट वाला पॉइंट नया है कि अगर ट्रस्ट वो इंडिविजुअल गिफ्ट देता है, और वो ट्रस्ट किस पर्पस के लिए क्रिएट किया है कि तो इंडिविजुअल के जो रिलेटिव उसके बेनिफिट के लिए। तो इन एनी केस इफ द गिफ्ट इज रिसीव्ड, if you receive the gift from your relative on occasion of your marriage, on the contemplation of the death of the payer, gift received by way of will or inheritance, or if you have received the gift from a local authority, or if you have received the gift from the charitable institution, or if you have received the gift is received by the trust from the individual, तो ये सभी केस में गिफ्ट एग्जाम्प्ट होती है, ठीक है, ये सभी केस में गिफ्ट एग्जाम्प्ट होती है, भले गिफ्ट का अमाउंट 50,000 से बढ़ जाए। अभी इसमें पहला पॉइंट है, इफ यू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम अ रिलेटिव देन इट इज एग्जाम्प्ट। नाउ अगेन दिस क्वेश्चन अराइजेस दैट हु इज अ रिलेटिव, रिलेटिव किसको कहेंगे, तो ये रिलेटिव का डेफिनेशन ये ब्लू में जो दिया है, दैट इज व्हाट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव।
मतलब रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट एग्जाम्प्ट है, लेकिन रिलेटिव किसको कहेंगे? तो रिलेटिव मीन्स व्हाट? देखो, अगर कोई भी इंडिविजुअल है, ओके, तो इन केस ऑफ इंडिविजुअल ये सभी लोग रिलेटिव है। अगर एचयूएफ है तो एचयूएफ का रिलेटिव कौन है? तो कि एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ, एचयूएफ का कोई भी मेंबर एचयूएफ के लिए कौन है? रिलेटिव है। कि इंडिविजुअल के केस में कोई सा रिलेटिव, तो यहाँ एरो करके दिया है कि ये सभी लोग इंडिविजुअल के लिए रिलेटिव है। इंडिविजुअल का जो स्पाउस है, मतलब सपोज इफ आई एम इंडिविजुअल, तो मेरी जो वाइफ है, मेरा जो ब्रदर है और मेरी सिस्टर, ओके, मतलब स्पाउस, ब्रदर और सिस्टर वो मेरे रिलेटिव है। सेम है मेरे लीनियर एसेंडेंट और डिसेंडेंट। लीनियर एसेंडेंट मतलब व्हाट? मेरे ऊपर वाले, मतलब माय फादर, दैट इज माय लीनियर एसेंडेंट। डिसेंडेंट मतलब माय सन, तो दैट इज माय लीनियर एसेंडेंट और डिसेंडेंट, तो दे आर अ रिलेटिव। मतलब आपके ब्रदर, सिस्टर और स्पाउस तो रिलेटिव है, ये आपके फादर भी रिलेटिव, आपका सन भी रिलेटिव। सेम वे आपके स्पाउस के जो ब्रदर और सिस्टर, देखो सेम चीज, जो आपके रिलेटिव है, आपका स्पाउस, आपके ब्रदर और सिस्टर, वैसे आपके स्पाउस के, मतलब आपकी वाइफ है, उसका ब्रदर है और उसकी सिस्टर है, वो भी आपके रिलेटिव है। और जो आपके स्पाउस के लीनियर एसेंडेंट, मतलब स्पाउस के फादर और स्पाउस का बेटा या बेटी, ओके, डिसेंडेंट, दे आर आल्सो रिलेटिव। ओके, मतलब बेटा और बेटी तो कॉमन होंगे, ओके, लेकिन स्पाउस के फादर भी आपके क्या है? रिलेटिव है। अभी देखो, आपके पेरेंट्स के ब्रदर और सिस्टर वो भी आपके रिलेटिव हैं, और ये सभी लोग जो हैं उसके जो स्पाउस है वो भी आपके रिलेटिव, मतलब ब्रदर की वाइफ और सिस्टर का हस्बैंड आपका रिलेटिव। फादर का ब्रदर आपका रिलेटिव है, तो उसकी वाइफ और फादर की सिस्टर है उसका हस्बैंड, ओके। और आपकी मदर के भी जो ब्रदर और सिस्टर हैं, ओके, दे आर रिलेटिव, और उसके स्पाउस, मतलब मामा मामी, मामा અને માસી પણ રિલેટિવ અને એમના સ્પાઉસ એટલે માસા અને ફુવા પણ રિલેટિવ થાય। ठीक है, तो सी बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। आपके ब्रदर और सिस्टर, ओके, आपके स्पाउस के ब्रदर और सिस्टर, और आपके पेरेंट के ब्रदर और सिस्टर, ठीक है। फिर आपके लीनियर एसेंडेंट और आपके स्पाउस के लीनियर एसेंडेंट, और ये सभी लोग जो बताए गए उसके स्पाउस, ये लोग आपके रिलेटिव। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन। ત્રણ જણના બ્રધર એન્ડ સિસ્ટર, કોણ? તો કે મારા, મારી ઘરવાળીના અને મારા પેરેન્ટ્સના, બ્રધર સિસ્ટર મારા રિલેટિવ। પછી તો કે મારા લિનિયર એસેન્ડન્ટ એટલે મારા ફાધર અને મારા ડિસેન્ડન્ટ એટલે મારો સન, એ મારા રિલેટિવ। એવી રીતે મારી વાઇફના ફાધર અને એનો સન એ મારા રિલેટિવ। અને લાસ્ટ આ બધા જે લોકો ડિસ્કસ કરે એમના બધાના સ્પાઉસ એ મારા રિલેટિવ। अगर आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिला है, देन द गिफ्ट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ओके, तो ये हमने देखा कि कब गिफ्ट एग्जम्प्ट होगी। रिलेटिव से मिलती है, सभी लोगों से गिफ्ट मिलती है, देन इट इज एग्जम्प्ट। और हु इज द रिलेटिव दैट वी हैव डिस्कस। अभी गिफ्ट को 4 कैटेगरी में, अभी गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी हम देखते हैं। देखो, तो लेट अस डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ द गिफ्ट। ओके, सपोज इफ यू रिसीव द मनी, सपोज आपको मनी मिला है गिफ्ट में, ओके, देन व्हेन द गिफ्ट इज टैक्सेबल, मनी, चेक और कोई भी टाइप का आपको मनी मिलता है, व्हेन इट इज टैक्सेबल, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम वन और मोर पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज मोर देन ₹50,000, देन होल अमाउंट ऑफ मनी इज टैक्सेबल। ओके, मतलब आपको किसी से गिफ्ट कैसे मिलती है? इफ यू आर रिसीविंग द गिफ्ट, देखो लेट अस डिस्कस। इफ यू आर रिसीविंग द गिफ्ट बाय योर मनी, मनी मतलब चेक भी मिलता है, बैंक अकाउंट में आता है, बट इफ यू आर रिसीविंग द गिफ्ट बाय योर मनी, तो वो कैसे टैक्सेबल होता है कि आपने एक पर्सन, वन पर्सन और वन से ज्यादा पर्सन, जितने भी लोग हैं उन लोगों से अलग अलग पैसा आपको मिला और अलग अलग पैसा उनको आपसे मिला, और इसका एग्रीगेट आपको करते हो, अमाउंट इज एक्सीड्स ₹50,000, 50,000 से ज्यादा हो गया। जो भी अमाउंट ऑफ आपका गिफ्ट है वो 50,000 से ज्यादा है, मतलब 70,000 सपोज हुआ, देन द एंटायर 70,000 इज टैक्सेबल। लेकिन वो आपको याद रखना है कि कब एग्जम्प्ट होगा, ये तो मनी रिसीव किया है। If the money is received from one or more person during the previous year and if the aggregate of such amount is more than 50,000, देखो ऐसा नहीं करने का 50,000 સુધી एग्जाम એટલે આવે, આમાંથી 20,000 टैक्सेबल થશે, ऐसा नहीं। The entire amount, the whole amount is taxable in case of money. Okay, suppose आपने money receive किया है and if you receive the money, then money is taxable, but when it is taxable in the aggregate amount of money received from various person or person
exceeds rupees 50,000, 50,000 से ऊपर हो जाता है, then that money is a taxable. अगर 50,000 से कम है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि the aggregate of money is received and the amount of gift in any case is less than rupees 50,000, it is not an income at all. उसको इनकम ही नहीं गिना जाता है और इट इज नॉट टैक्सेबल, कोई भी केस में वो टैक्सेबल भी नहीं होगा. तो मनी इज टैक्सेबल ओनली द अमाउंट ऑफ मनी, एग्रीगेट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय यू एक्सीड्स रुपीस 50,000, देन इट इज टैक्सेबल. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द मूवेबल प्रॉपर्टी. देखो मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपने रिसीव की तो मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आता है? मूवेबल प्रॉपर्टी में देखो इतनी चीज को ही मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं. ओके, shares and stocks, okay, drawings, painting, sculpture or any other work of art or jewelry and bullion. इतनी आइटम को ही मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं. ટેબલ, કોમ્પ્યુટર એ બધી વસ્તુને મૂવેબલ છે, પણ અહીંયા આ પ્રોવિઝન માટે મૂવેબલ પ્રોપર્ટી किसको कहेंगे? शेयर एंड स्टॉक, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ज्वेलरी एंड बुलियन. ओके, इतनी आइटम को ही मूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे. किस किस जो? शेयर्स एंड स्टॉक्स, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी वर्क ऑफ आर्ट और ज्वेलरी एंड बुलियन. ओनली दीज आइटम्स आर ट्रीटेड एज अ मूवेबल प्रॉपर्टी. अगर ये मूवेबल प्रॉपर्टी में देखो देयर आर टू पॉसिबिलिटी. ये मूवेबल प्रॉपर्टी आपको या तो फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में किसी ने गिफ्ट में दी है, मतलब विदाउट कंसिडरेशन. तो कब टैक्सेबल होगा? हाउ मच अमाउंट विल बी टैक्सेबल इफ यू रिसीव दिस मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन. सपोज अलग-अलग लोगों से आपको ये प्रॉपर्टी मिली है, उसकी आपको क्या देखनी है? यू आर सपोज टू चेक द फेयर मार्केट वैल्यू, और ये जितनी भी आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू का टोटल करो. सपोज मिस्टर एक्स ने मुझे 10,000 का पेंटिंग गिफ्ट में दिया, मिस्टर वाई ने मुझे 10,000 का बुलियन दिया, मिस्टर जेड ने मुझे 50,000 रुपये का पेंटिंग गिफ्ट में दिया, स्कल्पचर गिफ्ट में दिया. अगर इट टोटल इज हाउ मच? 70,000. इफ द एग्रीगेट ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू, एग्रीगेट ऑफ व्हाट? द एग्रीगेट ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द मनी रिसीव्ड, सॉरी, ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड इन अ गिफ्ट is exceeding rupees 50,000, मतलब 70,000 हो जाता है, 50,000 से ज़्यादा हो जाता है. In that case, the whole amount or whole the aggregate of fair market value will be taxable. मतलब aggregate of fair market value मतलब 70,000 टैक्स लगेगा. ऐसा नहीं सोचना है कि 50,000 भी टैक्सेबल नहीं, हमारे 20 टैक्सेबल है, ऐसा नहीं होगा. पूरा 70,000 टैक्सेबल होगा. सेम ये समझ लो आपको ये मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, ठीक है, लेकिन ये मूवेबल प्रॉपर्टी आपको विद कंसिडरेशन, मतलब आपसे कुछ थोड़ा बहुत पैसा लिया है, लेकिन वो कंसिडरेशन कैसा है? इनएडिक्वेट है. समझ लो 50,000 रुपये का ज्वेलरी था, किसी ने आपको 30,000 में दिया, आपके लिए यहाँ बेनिफिट कितना हुआ? 20,000. ये मेरा डिस्काउंट था. सेम में किसी ने 40,000 रुपये का पेंटिंग था, आपको 5,000 में दे दिया, तो यहाँ मुझे बेनिफिट कितना हुआ? 40 में से 5 गया 35. ओके, सपोज एक 10,000 का पेंटिंग था, किसी ने मुझे 1,000 में दे दिया, कितना हुआ? 9,000. देखो यहाँ पे अगर आपको मनी विदाउट, सॉरी, विद कंसिडरेशन आपको क्या मिलती है? मूवेबल प्रॉपर्टी. तो जितनी मूवेबल प्रॉपर्टी आपने परचेज की है, लेकिन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ये जो डिस्काउंट का अमाउंट है, 50 की वस्तु 30 में मिली तो 20,000 डिस्काउंट क्यों? 40,000 की वस्तु तुमने 5,000 में मिली तो 35,000 डिस्काउंट क्यों? लेकिन 20 में 35 55, 10,000 की वस्तु 9,000 में मिली, 10,000 की वस्तु 1,000 में मिली, 9,000 डिस्काउंट क्यों? फिर डिस्काउंट का जो अमाउंट है 55,900, ओके, तो सपोज 64,000 का मुझे इसी तरीके से मिले. देखो ये दोनों को अलग रखना है आपको. टोटल करते टाइम पे क्या करना है? विदाउट कंसिडरेशन वाली आइटम का अलग से टोटल करो, विद कंसिडरेशन में किसका टोटल करना है? ओनली ऑफ दिस डिस्काउंटेड फिगर. द डिस्काउंटेड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो है, इफ इट इज एक्सीड्स 50,000 देन इट इज टैक्सेबल. जब 50,000 से कम है डिस्काउंट का अमाउंट, देन इट इज नॉट टैक्सेबल. दिस वी हैव डिस्कस्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी. नाउ लेट अस डिस्कस इन रिस्पेक्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी. ओके, सपोज इफ यू रिसीव द इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है कैसे? तो कि गिफ्ट में. तो देयर आर अगेन टू पॉसिबिलिटी. एक आपको विदाउट कंसिडरेशन मिलता है, विदाउट कंसिडरेशन मिलती है,
और एक आपको विथ कंसिडरेशन मिलती है। इफ यू आर रिसीविंग वन विदाउट कंसिडरेशन, एक विथ कंसिडरेशन, ठीक है। सपोज इफ यू रिसीव द इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, देखो यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी में सिर्फ दो ही चीज को इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, बाकी सब होगा इमूवेबल, लेकिन ये सेक्शन के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस व्हाट, लैंड एंड बिल्डिंग, only two properties are treated as what, immovable property. और suppose if you receive the immovable property without consideration, तो देखो suppose समझो मिस्टर एक्स के पास जो कोई मेरा रिलेटिव नहीं है, कुछ नहीं है, उससे मुझे 70,000 की एक इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली, और मिस्टर वाई से मुझे 20,000 की इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली, ठीक है। तो एक चीज याद रखो, मैंने मूवेबल में क्या किया था, टोटल किया, यहाँ टोटल नहीं करना है, आपको देखना है एग्रीगेट नहीं करना है, इंडिविजुअली देखना है। तो मिस्टर एक्स से मुझे सपोज लैंड गिफ्ट में मिली, उसका अमाउंट देखो 70,000 है, 50 से ज्यादा है तो टैक्सेबल है। लेकिन मिस्टर वाई से मुझे 20,000 का कोई समझ लो बिल्डिंग मिला गिफ्ट में, लेकिन ये अमाउंट कैसा है, 50,000 से कम है, तो नॉट टैक्सेबल। बाकी सब में अब तक मैं क्या बताता रहा हूँ, टोटल करो। इमूवेबल प्रॉपर्टी में ध्यान रखना है आपको कि इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी यू आर नॉट सपोज टू डू द टोटल करना नहीं है, यू हैव टू चेक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, एक एक करके ट्रांजैक्शन देखो, और इफ द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन इज मोर देन ₹50,000 देन इट इज टैक्सेबल, अगर 50,000 से कम वैल्यू है देन इट इज नॉट टैक्सेबल। सो दिस इज द केयर दैट यू आर सपोज टू टेक इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो थोड़ा ध्यान रखना बेटा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में टोटल नहीं करते, सिर्फ इंडिविजुअली एक एक करके ट्रांजैक्शन देखते हैं, ठीक है। सेम वे आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट विद कंसीडरेशन मिला, लेकिन समझ लो किसी को के पास से आपने 5 लाख रुपए का घर लिया, लेकिन उसने 5 लाख का घर आपको 1 लाख में ही दे दिया, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आया, 4 लाख है। अभी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन ही देखना है, 4 लाख है, 50,000 से ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। लेकिन समझ लो किसी के पास से मैंने 5 लाख का घर दिया, उसने मुझे सिर्फ 4,70,000 में दिया, तो मुझे डिस्काउंट यहाँ कितना मिला, 30,000 डिस्काउंट। ये 30,000 50 से कम नहीं है तो टैक्स नॉट टैक्सेबल। यहाँ एग्रीगेट करना नहीं है, मूवेबल में मैंने एग्रीगेट किया था, इमूवेबल में आपको एग्रीगेट करना नहीं है। सो दिस इज द केयर यू आर सपोज टू टेक। तो हमने 3 तरीके से देखा, एक मनी विदाउट कंसीडरेशन होगा, विदाउट कंसीडरेशन होगा मनी, फिर हमने देखा मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट फॉर विदाउट कंसीडरेशन, एंड देन फाइनली वी हैव चेक व्हाट, वी हैव चेक द इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो दिस आर द प्रोविजन इन रिलेशन टू गिव द तीनों पॉइंट आपको मैंने जो बताया वही चीज है, यू जस्ट गो थ्रू। ओके, नाउ सी only gift is a property received is a capital for a recipient and it would not apply to the property received in a personal defect। मतलब वो आपको मैंने बताया कि गिफ्ट में क्या आएगा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कैपिटल, मतलब ये जो आपको मैंने बताया ना वो 5 चीजें। मूवेबल प्रॉपर्टी में हम मूवेबल प्रॉपर्टी किसको कहेंगे, तो ओनली दिस। दूसरी कोई भी एसेट मिलती है तो उसको हम मूवेबल एसेट नहीं कहेंगे। देखो ये सब कैपिटल एसेट मूवेबल है, लेकिन क्या है, कैपिटल एसेट। तो ओनली दीस आर द ट्रीटेड एज व्हाट। अगर आपको कोई कंप्यूटर में बाइक या कार गिफ्ट में देता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। मूवेबल प्रॉपर्टी में सिर्फ कितनी चीजें आती है, शेयर्स और स्टॉक, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ज्वेलरी एंड बुलियन। ये अगर कैपिटल एसेट है तभी उसको गिफ्ट कहेंगे। अगर आपको कोई कार गिफ्ट में देता है, नॉट टैक्सेबल बिकॉज इट इज नॉट अ मूवेबल एसेट। और यहाँ पे भी इमूवेबल में क्या आता है, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब जो कैपिटल एसेट है वही चीज को हम गिफ्ट कहेंगे। तो कैपिटल एसेट नहीं, कोई आपको कार ऐसा कुछ दे देता है तो इट इज नॉट इट इज नॉट टैक्सेबल। ओके, देखो गिफ्ट रिसीव्ड बाय नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी फ्रॉम द इंडियन रेसिडेंट इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया एंड इट इज टैक्सेबल। वो आपको पता है कि अगर इंडियन बंदे कोई एनआरआई को और फॉरेन कंपनी को हम इंडिया से गिफ्ट देते हैं तो ऐसा मान लिया जाता है कि गिफ्ट मतलब वो इंडिया में कि मतलब इट इज ट्रीटेड एज इंडियन इनकम बिकॉज इट इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया एंड इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। भले वो फॉरेनर है फिर भी उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। So these are the provisions in relation to gift that we have discussed. Now the next point of discussion is the another income which is taxable is interest on compensation for compulsory acquisition of land and building. Okay, अगर
आपका कोई लैंड और बिल्डिंग है, ओके, उसको कोई कंपलसरी गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है, वो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ओके। कंपलसरी एक्विजिशन का अगर आपको कॉम्पेंसेशन मिलता है, क्या बोला गया कि इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन फॉर कंपलसरी एक्विजिशन, ओके, then whatever interest you are receiving, it is taxable under the head income from other sources. income from other sources में ये taxable हो जाएगा. interest on compensation for compulsory acquisition of land and building is taxable under this head, okay. और यहाँ एक point ऐसा है कि taxable for the previous year, okay, and 50% of such receipt is deductible and only 50% is taxable, okay. तो देखो ये हम देखते हैं ये प्रोविजन क्या कहना चाहता है, इसको मैं एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करता हूँ, सो यू विल गेट दी मोर क्लैरिटी. सपोज कंपलसरी एक्विजिशन किसको कहते हैं वो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था. व्हाट इज कॉल्ड कंपलसरी एक्विजिशन. लैंड एंड बिल्डिंग का कंपलसरी एक्विजिशन का मतलब क्या है कि अगर आपकी लैंड और आपके पास बिल्डिंग है उसको आप बेचना नहीं चाह रहे, लेकिन गवर्नमेंट सपोज यहाँ से लैंड और बिल्डिंग के ऊपर से सपोज कोई रोड निकल रहा है, या तो फिर यहाँ से कोई ऑयल निकला, या तो फिर यहाँ से रेलवे की लाइन जा रही है, और गवर्नमेंट को सपोज आप ये जगह पे आपका जहाँ पे लैंड है वहाँ बिल्डिंग है, वहाँ पे गवर्नमेंट को अपनी प्रॉपर्टी बनानी है, तो आपसे लैंड और बिल्डिंग आपसे खरीद लिया, आपको नहीं बेचना है लेकिन गवर्नमेंट को आपसे खरीदना है, तो गवर्नमेंट कैन कंपलसरी एक्वायर करनी, आपको बेचना ही पड़ेगा. लोगों को क्या जमीन में की वैल्यू कैसे मतलब जमीन मारी चाहिए नहीं बेचो, बेच देना पड़ेगा. आप ऐसा नहीं बोलो कि यहाँ से आपको आप हाईवे नहीं निकाल सकते, साइड पे से निकालो, हाईवे जा रहा है तो आपको बेचनी ही पड़ेगी. तो अगर ये केस के अंदर अगर आपका कंपलसरी एक्विजिशन होता, दैट इज कॉल्ड कंपलसरी एक्विजिशन. गवर्नमेंट कंपलसरी आपसे वो जमीन ले लेती, बिल्डिंग ले, उसका आपको पैसा मिलेगा, उसको हम क्या कहेंगे, वी कॉल्ड इट एज ए कॉम्पेंसेशन, क्योंकि उसको हम कॉम्पेंसेशन कहते हैं. लेकिन ये जो कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट जो देती है, यू नो गवर्नमेंट पैसे देने में हमेशा डिले करती है, तो जब भी आपको लेट पैसा मिलेगा तो वो जितना भी पीरियड लेट हुआ वो पीरियड का आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, ओके. सपोज मेरी 5 करोड़ रुपए में गवर्नमेंट ने लैंड ले ली और उसने पैसा 2 साल के बाद दिया, तो 5 करोड़ तो मुझे मिलेगा, लेकिन 2 साल का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा. देखो 5 करोड़ जो मिल रहा है ना, ओके, सपोज जमीन की 1 करोड़ आती है, 5 करोड़ में जाएगी तो 4 लाख रुपये हमारा कैपिटल गेन है. ये कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल अंडर व्हिच कैपिटल गेन. लेकिन ये 5 करोड़ रुपये दूसरा 2 सपोज समझ लो 10% मुझे इंटरेस्ट मिला 50 लाख रुपये, 2 साल के बाद पैसा मिला, सपोज 1 करोड़ रुपया मुझे इंटरेस्ट मिला, तो 1 करोड़ रुपया मुझे इंटरेस्ट मिला. तो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो क्या, इट इज ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. और जितना भी आपको वो पैसा मिल रहा है इंटरेस्ट का, वो पीजीबीपी सॉरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा. लेकिन प्रोविजन क्या कहता है कि 50% ऑफ सच अमाउंट इज टैक्सेबल एंड 50% इज डिडक्टेबल. मतलब 1 करोड़ रुपया सपोज आपको इंटरेस्ट मिलता है तो 1 करोड़ इज नॉट टैक्सेबल, उसका जो 50% है वो 50% इज डिडक्टेबल. मतलब 50 लाख का आपको डिडक्शन मिल जाएगा. બીજો કોઈ બી ખર્ચો તમે કરો કે સપોઝ ઇન્ટરેસ્ટ લેવા માટે તમે કોર્ટમાં કેસ લડ્યા એના માટે બીજો 25 લાખનો ખર્ચો થયો, એ ખર્ચાનું તમને ડિડક્શન નહીં મળે, અહીંયા ફ્લેટ ડિડક્શન તમને જેટલું પણ ઇન્ટરેસ્ટ મળશે उसका 50% आपको अंडर सेक्शन 57 डिडक्शन मिलेगा. तो इफ यू रिसीव द मनी, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ध्यान रखना, इफ यू रिसीव द इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन, आपको इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड और बिल्डिंग पे अगर इंटरेस्ट मिलता है तो जो भी इंटरेस्ट है उसका 50% डिडक्टेबल है. उसके लिए दूसरा कोई खर्चा किया होगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको फ्लैट 50% डिडक्शन मिल जाएगा. 10 लाख मिला तो માંથી 5 लाख નું डिडक्शन, 5 लाख रुपया टैक्सेबल. 10 लाख લેવા માટે તમે કોર્ટમાં 10 વર્ષ કેસ લડે એના માટે 25 લાખ ખર્ચો છે, એટલે 25 લાખનો ખર્ચાનું ડિડક્શન નહીં મળે. क्योंकि इंटरेस्ट है ना हाफ નું डिडक्शन 50% નું डिडक्शन મળી જશે. તો 10 लाख इंटरेस्ट મળી હોય तो 5 लाख एग्जाम एंड टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, ओनली 5 लाख. If you receive the interest on compulsory acquisition, okay, suppose if you receive the interest on compulsory acquisition of land and building, then whatever amount is
received by you in a previous year, 50% of such receipt is deductible and only 50% is taxable. बाकी का 50% ही taxable होगा. Now see suppose the next point, issue of shares at premium by the closely held company to the resident. देखो closely held company मतलब private limited company, समझ लो public company है, it is called largely held company. लेकिन closely held company किसको कहोगे? तो private limited होती है जिसमें number of shareholders बहुत कम होते हैं. ऐसी कंपनी अगर शेयर्स इश्यू करती है और वो शेयर्स प्रीमियम से इश्यू करती हैं, तो वो शेयर्स की जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है और जो प्रीमियम का अमाउंट होता है, मतलब जो शेयर प्राइस होती है, ये दोनों का जो डिफरेंस होता है, दैट अमाउंट इज ट्रीटेड एज इनकम इन द हैंड्स ऑफ कंपनी एंड इट इज टैक्सेबल. ये मतलब समझ लो कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड समझ लो, जिसमें नंबर ऑफ शेयरहोल्डर्स बहुत कम है और घर घर के लोगों का इंटरेस्ट है, ऐसी क्लोजली हेल्ड कंपनी उसने 10 रुपये का शेयर, ये तो उसकी क्या हो गई फेस वैल्यू, कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपये की, उसने उसको मार्केट में इश्यू किया 50 रुपये से, मतलब 40 रुपया क्या है तो प्रीमियम है और 10 रुपया फेस वैल्यू, मतलब 40 इज द प्रीमियम, 10% 10 रुपीज इज द फेस वैल्यू, टोटल 50 रुपये में शेयर इश्यू किया. अभी ये जो शेयर उसकी एग्जिस्टिंग कंपनी ने शेयर इश्यू किया है, तो इस शेयर की मार्केट वैल्यू निकाले तो मार्केट वैल्यू कितनी है, 30 रुपीज है. ये मेथड से प्रमाण आपने वैल्यू करेंगे तो 30 रुपये, मतलब शेयर खरेखर आदमी तारीख के नंबर मार्केट में बेचो हो तो आ शेयर ना 30 रुपया आई सके, कंपनी ये शेयर कितना में इश्यू करे तो 50 में, तो 20 रुपया जो डिफरेंस है इस 20 रुपीज, मतलब जो कंपनी की शेयर की जो फेयर मार्केट वैल्यू है और जो इश्यू प्राइस है. अगर कंपनी प्रीमियम से शेयर इश्यू करती है तो आपको क्या करना है कि शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू फाइंड करो और इश्यू प्राइस है, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज ट्रीटेड एज द इनकम इन द हैंड्स ऑफ कंपनी एंड वो कंपनी के लिए कौन से हेड में टैक्सेबल होगी, अंडर पेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. सो इफ एनी क्लोजली हेल्ड कंपनी इश्यूज द शेयर्स टू द रेसिडेंट, then what is the taxable amount in the hands of company, then whatever is the issue price minus the fair market value, the difference between these two is taxable in the hands of company. Okay, अभी आप देखो तो here all the income which are taxable under the head income from other sources that I have discussed with you. Okay, now मैंने कौन कौन सी इनकम डिस्कस की अब तक, we have discussed all this income, you can see here all this income I have discussed, ये सभी इनकम टैक्सेबल होती है. उसके बाद ये डिटेल में डिस्कस किया डिविडेंड, गिफ्ट्स, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इंटरेस्ट, ओके, दिस इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन, प्रीमियम से शेयर इश्यू करते हैं, ये सभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है. नाउ सी एज एंड व्हेन वी कंप्यूट द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सर्टेन डिडक्शंस आर आल्सो अवेलेबल. ओके, मतलब देखो मैंने आपको बताया था पहले दिन ही कि टैक्सेबल इनकम आप जो भी करते हो, यहाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैसे फाइंड करते हैं, तो ये हेड में जो टैक्सेबल इनकम है, तो ये सभी आपसे डिस्कस किए, मेरी क्या हो गई, टैक्सेबल इनकम हो गई. और ये जो टैक्सेबल इनकम है उसमें से जो भी एक्सपेंसेस आपने किए ये इनकम को अर्न करने के लिए, ये दोनों के बीच का आपको क्या फाइंड करना है, डिफरेंस. टैक्सेबल इनकम अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माइनस एक्सपेंसेस दैट इज अलाउड एज अ डिडक्शन. ओके, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड योर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. हमने ये पोर्शन तो देख लिया कि भाई कौन कौन से इनकम टैक्सेबल है. नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस दिस दैट एज एंड व्हेन वी कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम व्हिच एक्सपेंसेस आर अलाउड एज अ डिडक्शन, कौन कौन से एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलेगा. तो सी फर्स्ट देखो, आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि फैमिली पेंशन आप रिसीव करते हो, यहाँ पे फैमिली पेंशन बताया था कि अगर कोई भी बंदा की डेथ हो जाती है और उसके फैमिली मेंबर को उसका पेंशन मिलता है, देन इट इज कॉल्ड फैमिली पेंशन. इफ द फैमिली पेंशन इज रिसीव्ड, सपोज मेरी डेथ हो जाने के बाद मेरी वाइफ को पेंशन मिलता है मेरा, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, फैमिली पेंशन. नाउ सपोज माय वाइफ इज रिसीविंग द पेंशन, देन इट इज टैक्सेबल इन हर हैंड अंडर व्हिच हेड, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. नाउ बट इफ शी इज रिसीविंग द पेंशन, देखो यहाँ से डिडक्शन मिलेगा. कितना डिडक्शन, सपोज समवन इज रिसीव्ड द फैमिली पेंशन, then rupees 15,000 or 1/3 of such family pension, whichever is lower, that is allowed as a deduction. Suppose someone, though my wife has received rupees 1 lakh, उसको मेरे यहाँ पे 1 लाख रुपए का पेंशन मिला, ओके, फैमिली पेंशन, तो उसको डिडक्शन कितना मिलेगा,
ठीक है, ₹15,000 और 1/3 ऑफ सच पेंशन मतलब 1,00,000, समझ 90,000 है, 90,000, तो 90,000 का 1/3 कितना होगा 30,000। सो वी हैव टू कंपेयर, मेरी वाइफ ने 90,000 पेंशन रिसीव किया तो उसको 90,000 अगर उसने फैमिली पेंशन रिसीव किया तो ये फैमिली पेंशन में से एग्जम्पशन सॉरी डिडक्शन कितना मिलेगा, ₹15,000 और 30% ऑफ सच प्रीमियम विच एवर इज लोअर, तो ये दोनों में से लोअर कितना है 15,000। So 15,000 will be allowed as a deduction and the remaining amount 75,000 is taxable. So you must know that if the family pension is received and 1/3 or rupees 15,000 whichever is lower, that is allowed as a deduction and the remaining amount is taxable. ऐसा एग्जाम्पल आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है। तो फैमिली पेंशन का एक डिडक्शन मिलता है, सपोज समझ लो कि आपको डिविडेंड मिलता है, तो आपको मैंने बताया कि डिविडेंड और इंटरेस्ट यहाँ पे टैक्सेबल होता है, उस डिविडेंड और इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होती, लेकिन जब डिविडेंड टैक्सेबल होता है तो टैक्सेबल डिविडेंड को आपने रियलाइज करने के लिए कोई खर्चा किया, कोई रेम्यूनरेशन आपने पे किया, सपोज बैंक चार्जेस पे किए, ओके, और सपोज आपने इंटरेस्ट को रिसीव करने के लिए कोई एजेंट रखा है और एजेंट को कुछ रेम्यूनरेशन पे किया, और डिविडेंड रिसीव करने के लिए अगर आपने कोई स्टॉक ब्रोकर रखा है उसको कुछ कमीशन पे किया, व्हाटएवर एक्सपेंस यू आर इनकर्ड इन ऑर्डर टू रियलाइजिंग द डिविडेंड और इंटरेस्ट, दैट एक्सपेंस इज अलाउड एज ए डिडक्शन। सेम वे एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, ओके, मैंने आपको ये तो बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि एम्प्लॉय से जब आपको पैसा मिलता है टुवर्ड्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ पीएफ, पीजीबीपी में भी ये टैक्सेबल हो सकता है, पीजीबीपी में आपने उसको टैक्सेबल नहीं किया तो अदर होम सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, तो अगर एम्प्लॉय से आपको पैसा मिला उसका कंट्रीब्यूशन आप ड्यू डेट से पहले डिपॉजिट कर देते हो, जितना भी पैसा डिपॉजिट किया है तो उसका आपको डिडक्शन मिलेगा अगर आपने ये इनकम को ये हेड में अदर सोर्सेज में टैक्सेबल किए तो। और पीजीबीपी में टैक्सेबल किए तो वहाँ पे भी सेम प्रोविजन है, सेक्शन 36 में हमने देखा है कि ड्यू डेट से पहले एम्प्लॉय से मिला हुआ पैसा हम डिपॉजिट कर देते हैं, इट इज़ अलाउड एज ए डिडक्शन। सेम वे अगर आप प्लांट मशीनरी और फर्नीचर को लेट आउट करने का बिजनेस लेट आउट किया आपने किसी को, तो उसका जो भी डेप्रिसिएशन होता है, ओके, सर इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अगर आपकी है तो क्या होगा, अगर आपकी ये इनकम यहाँ टैक्सेबल होती है तो उसका जो रिपेयर का खर्चा होगा वो उसका भी डिडक्शन मिलेगा, उसका डेप्रीसिएशन का भी डिडक्शन मिलेगा। आपको मैंने बताया कि प्लांट मशीनरी और फर्नीचर को लेट आउट करना आपका बिजनेस है तो वो इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी, पीजीबीपी में। लेकिन सपोज आपके पास 1-2 या प्लांट पड़े, उसको आपका बिजनेस नहीं, आपने किसी को लेट आउट किया, उसकी इनकम आपको अराइज हुई, तो विल इट बी टैक्सेबल इन योर हैंड, यस इट इज टैक्सेबल और टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अगर वो प्लांट की इनकम रेंट टैक्सेबल होती है तो रेंट को अर्न करने के लिए आपने रिपेयर का और इंश्योरेंस का कोई खर्चा किया तो उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। सेम वे उसका डेप्रीसिएशन का भी आपको डिडक्शन मिलेगा, और डेप्रीसिएशन आप जैसे सेक्शन 32 में कैलकुलेट करते हो वही तरीके से यहाँ डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है। देखो कुछ एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलता, सपोज आपने कोई पर्सनल एक्सपेंस किए, आप बोलते हो अदर सोर्सेज की इनकम को अर्न करने के लिए किए, तो पर्सनल एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव आपने पीजीबीपी में देखा, उसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। और किसी को पेमेंट 10,000 से ज़्यादा कैश में करते हो तो भी नहीं मिलेगा, और टीडीएस का डिफॉल्ट करते हो तो भी नहीं मिलेगा। मतलब जो पीजीबीपी के प्रोविजन है इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस के, सेम प्रोविजंस आर एप्लीकेबल हियर ऑल्सो, कि अगर कोई इनकम टैक्सेबल होती है हेड में और वो ई इनकम को अर्न करने के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया है, लेकिन आपने ये कोई गलती कर दी कि पर्सनल नेचर का एक्सपेंस है उसका आप डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते हो। अगर आपके रिलेटिव को कोई एक्सेस पेमेंट किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर कोई एक्सपेंस का आपको डिडक्शन मिलने वाला है लेकिन उसका पेमेंट अगर आपने कैश में कर दिया डिडक्शन नहीं मिलेगा। और सी अगर आपने टीडीएस डिफॉल्ट कर दिया, ओके, तो सेम वे जो डिसअलाउंस टीडीएस डिफॉल्ट के जो प्रोविजन आपको मैंने बताया तो सेम एप्लीकेबल हियर ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड एज ए डिडक्शन। सो विद दिस योर चैप्टर इनकम अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज ओवर। फ्रॉम ईयर 5 to 6 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, सो लर्न इट वेरी केयरफुली, वेरी टेक्निकल चैप्टर, मतलब यहाँ फिगर्स ज़्यादा हैं तो याद रखना सब, और गिफ्ट में से क्वेश्चन आ सकते हैं, डिविडेंड में से आ सकते हैं, तो इसको 1-2 बार अच्छे से सुन लीजिए वीडियो को, ओके। 1 आवर का वीडियो है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई लेक्चर, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज पेपर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली, ओके। इसके अलावा आपको मैंने एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं उसका भी वीडियो भेजा हुआ है, वो वीडियो को भी सुनिए, और जो ये मटेरियल दिया है मटेरियल को अच्छे से पढ़िए, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।